Good evening, ladies and gentlemen, respected dignitaries, my colleagues, and my dear friends. It gives me immense pleasure to welcome to you all to this special evening organized to bid a warm farewell to Shri Ashish Bhatnagar Sir, Additional Director General of Prasar Bharati, Northeast Zone. This special ceremony jointly organized by Doordarshan Kendra Guwahati and Akashbani Guwahati, our logote Zonal Office Guwahati. We feel privileged to have among us senior officials of Prasar Bharati from different parts of India. Your presence truly adds grace and warmth to this ceremony. छात्र जीवन से ही लीडर के रूप में उभरे और कॉलेज से ही अपने हितों और अधिकारों के लिए लड़ने में अग्रसर रहे श्री आशीष भटनागर सर ने इस डिपार्टमेंट में अपने करियर की शुरुआत की एज ए असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर जगदलपुर में। तत्पश्चात पदोन्नत होकर सर देश के जगह जगह अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए अब उत्तर पूर्व क्षेत्र के इस कार्यालय से अपर महानिदेशक पद से सेवा निवृत्त हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जोनल ऑफिस सर के मार्गदर्शन में अन्य जोनों के मुकाबले बेहतर स्थान पर रहा है। यहाँ भटनागर सर के रहते कार्यालय के नियमित कार्य के उपरांत कई सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुए, जैसे वर्ल्ड रेडियो डे, हर घर तिरंगा, आकाशवाणी गुवाहाटी की स्थापना दिवस को मनाना, लेबर डे, हिंदी दिवस को मनाना, महिलाओं के लिए काम करना, महिला दिवस को मनाना। सर सोशल मीडिया में भी बहुत ही एक्टिव रहे हैं, जो कि आज के डेट में बहुत ही ज़रूरत है। सर के महानुभावता के कारण केंद्र और कर्मियों, चाहे वो रेगुलर हो या कैजुअल, सभी का कल्याण होता रहा। सर ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी के सचिव पद पर भी अपने कार्यकुशलता का परिचय दिया है। एबार मैं प्रथमे अनुरोध जनाम श्रीजुत आर.सी. बड़ो सरक आदरणीय जी आमार भाषण সেই भाषण परिवेशन কৰিবলৈ भाषण দিবলৈ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। It's a day of mixed emotions for all of us here in our zonal office. We gather here with gratitude, admiration, and touch of sadness to bid farewell to a leader who has left an indelible mark on this institution, our respected Ashish Bhatnagar sir. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कॉल दिया था आकाशवाणी गुवाहाटी और दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी को, and respectfully they have agreed to our call that we have invited them to held a farewell function commonly, not only with these three institutions situated in Guwahati, but we have invited all the Prasar Bharati components like PIB also. They will be joining us soon. And those retired who are nearby, those recently retired and engaged in Prasar Bharati, we have invited to all of them. And it is to our pleasure that they have today gathered, coming from far away places. ये हमारे कॉल पर बहुत ही रेस्पॉन्स किया और दिस shows that how much they want Bhatnagar साहब here. उसके साथ कितना जुड़ाव था ये इसका प्रूफ करते हैं. So since the day you have joined this office in 2021, you have inspired us not only with your dedication but also with your vision. You are a visionary, a dynamic personality, and truly a man of dreams. You always encouraged us to think beyond the ordinary, to look at the challenges not as obstacles but as opportunities. Sir, your hardworking nature, your out-of-the-box ideas, and your ability to turn dreams into achievable goals have been nothing short of remarkable. Under your leadership, this office witnessed not just progress but transformation.
What stood out most was your belief that excellence is not an option, but a habit. Sir, you have been more than an administrator, you have been a mentor, a motivator, and a guide who always led by example. The culture of discipline, innovation, and teamwork that you nurtured will continue to inspire us long after you move to your next chapter. As you step into a new journey, we wish you continued success, good health, and happiness, of course, along with your family members. এবাৰ মই আকাশবাণী কেম্পাছ কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ মহিলা দলটোক সমাবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি হওক মেম অলৰেডি আমাৰ মঞ্চত আহিছে, গতিকে ধন্যবাদ প্ৰতিমা ভটনাগৰ মেমক। প্ৰতিমা ভটনাগৰ মেম এগৰাকী যুগৰ শিক্ষয়িত্ৰী, আৰু ভটনাগৰ মেমক এটা মমেণ্টৰে সম্বৰ্ধনা জনাব মামনি বড়োৱে। মই মামনি বড়োক অনুৰোধ জনাম, লগতে জনাম আপোনালোকে অকণমান হাত চাপৰি। ধন্যবাদ। মই ভটনাগৰ ছাৰক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। গীতা ভট্টাচাৰ্যই এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব ছাৰক, আৰু মেম দুয়োগৰাকী আমাৰ মঞ্চতে আছে। ধন্যবাদ। প্লিজ টেক ইউৰ ছিট ছাৰ। অ'কে, ফটোগ্ৰাফী। ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলৈকে। जैसे कि हमेशा मैं हमारा साहब को मैं तो भगवान शिव जैसा देखता हूँ। जैसे कि जैसे कि जब खुश हो जाता है तो सब कुछ देता है। और एक तो ये कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में देखिए
in a small state there are lot of diversities. ऐसा लगता है कि हमारा हिंदू धर्म का जितना माइथोलॉजी में जितना राक्षस, जितना असुरा, पिशाच, दानव जितना भी है हमारा नॉर्थ ईस्ट में सब है। पर ये सबको बचाने के लिए प्यार से ओनली हमारा शिव भगवान अपना पास रखिए, प्यार से प्यार से सिखाता है और हमेशा अपने पास रखता है। इस तरह हमारा साहब हमेशा हम लोग को प्यार से सबको समझाने का और उठाने का, आगे ले जाने का कोशिश करता है। আশিষ ভটনাগৰ ছাৰক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু ছাৰক আমাৰ ফালৰ পৰা অকণমান মৰম, অকণমান শ্ৰদ্ধা, অকণমান সন্মান যাচিব বিচাৰিছোঁ। চ' ছাৰ প্লিজ। এয়া অসমৰ মৰমৰ এটা জাপিৰে ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাব নৰেম ছাৰে। এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি ছাৰৰ বাবে। ধন্যবাদ। ছাৰৰ বাবে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ বিষয়ববীয়াই পবিত্ৰ বেজবৰুৱা আমাৰ কলিগ আছিল, তেখেত অলৰেডি ৰিটায়াৰ হৈছে যদিও ৰেডিঅ'ৰ সৈতে সম্পৰ্ক এতিয়া বজাই ৰাখিছে। ৰামচেৰি অভি ভিজিলেন্স में गया सेक्शन में। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ। নিশ্চয়কৈ আমাৰ সম্বৰ্ধনা আৰু যদি আছে তেনেহ'লে আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ।
নৃত্যই আমাৰ এই মঞ্চ মুখৰিত হৈ তুলিছে। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ। Now I would like to hear a few words from Shri S.K. Duhare sir. आशीष भटनागर जी के रिटायरमेंट के फेयरवेल पार्टी में आज के इस स्टेज के सेंटर स्टेज पर उपस्थित श्रीमान आशीष भटनागर साहब, साथ में हमारे भटनागर सर के पिताजी श्री के.जी. भटनागर सर, प्रतिमा मैडम जो योगा टीचर भी हैं, हमारे बीच उपस्थित भटनागर सर की पुत्रियां सुवर्णा एंड तासी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथीगण और आल्स जितने भी उपस्थित हैं। मेरे पहले के पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ भटनागर सर के बारे में बोल दिए हैं, उससे हट के मैं बोलना चाहूँगा। भटनागर सर को उनके साथ काम करने का मौका मुझे 10 महीना पहले ही मिला है, लेकिन उनका नाम बहुत पहले से हम सुन रखे थे। जब हमारी ज्वाइनिंग हुई उसके 2 साल के बाद ही पता चल गया कि आशीष भटनागर सर हैं, जो उस समय स्टेशन इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन स्टेशन इंजीनियर तो उनका डेजिग्नेशन था, लेकिन एक लीडर के रूप में उनकी पहचान थी। उनसे और उस समय कई वरिष्ठ ऑफिसर्स हुआ करते थे। लेकिन हमारा जो प्लेटफार्म होता है आकाशवाणी एवं दूरदर्शन इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्लेटफार्म पे उनकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ती थी। उनके वक्तव्य है, उनके मत है, वो हमको पता चलता था ये भटनागर साहब का ऐसा मत है, उनका ऐसा स्टेटमेंट है। साथ में एक BS ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी भी होती थी, उसमें भी भटनागर साहब का बहुत ही एक्टिव रोल हुआ करता था। उनमें उनका लेख छपता था और BS के इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में उनके ज़रूर सुझाव होते थे। और हमारे एसोसिएशन के मैटर्स पे जो भी डिफ़िकल्टीज आती थी हमारे स्ट्रक्चर कैडर स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी एसोसिएशन पे अपनी बात रखते थे। Sir opens a new chapter of his life. Our blessings, our good wishes are always with him, and may he find peace. And even as he starts in a new environment, and let Almighty God renew him, restore him, re-strengthen him, so that he can continue to lead, to guide wherever he may be, and be a source of blessings. Rest of the group that are here assembling together from All India Radio, from Doordarshan Guwahati, from ADG's office,
we are fortunate to assemble like this together. There is a purpose for us assembling like this. We want to hear something. We want to hear some surprises. And I'll tell you that. Life is a journey. And life is also a story. In journey, you come across difficulties, difficult circumstances. You met harsh weather condition. You met good weather condition. God has given us strength to undertake that journey. And in that journey, we have stories of our lives. We tell stories on different occasions, different encounters we meet, different conversation that we have. And what do we do by that? As humans, we are wired. We are motivated by the success of another human being. We are motivated by the achievements that he made. We feel sad when something is not good. We're all wired in that way, man. God has given this to us. We feel good to see Sir's dad here in our midst. He's inching maybe 90 plus, but he's still strong. And it's quite an honor maybe for him to see his son being felicitated and to witness that, yeah, my son has done well maybe in the zone. Otherwise, why would people bestow so much love on him, so much respect? Well, these are the stories that we are here to listen. We are here to learn about. You know, so each of us have a story to tell. You make a journey in your life. You tell that story. Make that story a special one. Let people who hear it, maybe it will be a blessing to them. Maybe you will learn something from them. You will learn from the difficulties that they went through. You will learn through the problems that they encounter and how you can overcome that. And above all, how you can be the best citizen. I'm not here to lecture on humanities as such. I'm just here to take this privilege that we are so good to hear the stories. The speakers before me have said a lot about Sir. Yes, Hemanta has dwelled a lot on the various encounters that we have in life. We face, sometimes we get bouquets in our lives, we get brickbats in our lives too. So we face both and we enjoy that. That is part of our journey. Very good evening or afternoon rather to all who are gathered here at this function to bid farewell to our beloved and respected Additional Director General of the Northeastern Region, Sri Ashish Bhatnagar. Don't be scared that I have these papers. It's because I really have, I need to jot down some points which are important, which I would like to share with you all. It's part of his work and part of our roadmap that he has set for us. It's 4 pages because of the font that is big, okay, because I can't see properly. Okay, sir, let me continue with this. Sir Ashish is a very dynamic leader. He's a mentor who is filled with wisdom and a deep sense of duty, just like Sir has said. He has brought the radio closer to the people through his many initiatives. I would like to name some of them, but the one that comes most to me is the one that he has started in the Akashvani station of All India Radio, and that is Give a Radio campaign. He started this in 2024, was it, sir?
and it was an amazing way to connect with our audiences across the society. All the Akashvani stations in the Northeast took time out, identified the people who needed a radio, and we went out and gifted them one. And the action of gifting a radio to such people brought us a lot of appreciation and put radio in the spotlight, you should say. And they were very, very grateful and appreciative of the gesture. This campaign is still continuing in Akashvani Guwahati, I should say, where we gifted radio sets to people from all walks of life whenever we have a function, to those who are associated with Akashvani and to those who are our regular listeners. This initiative started by Sir is a very good way to maintain our presence in this age of digital media. This campaign will be carried forward by every Akashvani station, because this is the way to connect more closely with the masses. Actually, I'm here not on my behalf. Actually, I'm representing ADG's Zonal Content Office, Northeast Zone. I've been told by Rajiv Bhattacharya sir to wish sir and family his sincere best wishes for the coming days after retirement and much more. And from my side, I just share few lines with you. Basically, the function that we're seeing today is probably one of the most remarkable things that we ever witnessed for an individual leaving this organization after achieving superannuation. We've never seen such a vibrant function being held. And the sobriquet that is being bestowed on Sir is every inch of that he is deserving. Like Hemanta Rogan sir compared with him Lord Shivji, and everyone who ever spoke so highly about him. I would like to keep it very few in words, and like to, as a content man, as a program man, bring in some entertainment into what has been said. I'd like to compare Sir with the AB of India, Amitabh Bachchan. He is the AB of Northeast, so of Doordarshan and Akashvani. I think he deserves an applause of that sort in his life, because he has really given something that we have looked up to. He has been a leader to the core from 2021, post-corona time. The most difficult of times, he came here and motivated us. We were down, we were cowed down by everything. Economy was in shatters. Everybody was in a very dull sort of an mindset. But people like AB, Amitabh Bachchan in Western India, all over Pan-India, and AB, Ashish Bhatnagar sir, in Northeast, did wonders for the organization and for the society. With these few words, I wish Sir and family the best of things in the lives to come, and may, as Vinota sir said, the retiring go on, and he continues. And a big namaskar to Sir Dad, who has completed 90 years. Sir, give us some best wishes that at least we get 75% of what you have achieved. Thank you, sir. सर जो है, सर एक बहुत इंस्पिरेटिव इंसान है, और सर का जो लक्ष्य होता है वो स्काई इज द लिमिट. तो सर एक के बाद एक चले जाते हैं. मतलब सर, मतलब हमें शांति जो है थोड़ा ऊपर, और देवाशीष जो ठीक नहीं हुआ या कोई भी है वो ठीक नहीं है, थोड़ा ऊपर. तो सर वैसा ही है, तो ये अच्छा है. आज का ज़माना में हमें वैसा ही इंसान चाहिए. और सर बोलता था डंडा, अगर कुछ नहीं होता तो डंडा लेना बहुत ज़रूरी है. हाँ सर, सही बोला आपने, डंडा हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है. हमें डंडा से ही मतलब हम मानते हैं. सर का मेरा बहुत आशीर्वाद रहा, क्योंकि मैं सर का पहले मैं मिला, सर जिस दिन ज्वाइन किए थे तो दादन ADG शशि सर थे. शशि सर मुझे बहुत प्यार करते थे, तो शशि सर ने बोला आप आ जाओ, मैं मिला देता हूँ. मैं शिलोंग में मिला था, वो भटनागर सर है, तो मैं आया सर से मिलने. मेरा दादन HOP कल्याण सर थे, तो हम लोग दोनों आए, सर से मिले. तो उसी दिन से सर से एक संबंध बन चुका है. तो सर भी प्रोग्राम में बोलते देवाशीष क्या कर रहे हो, कैसा हो रहा है. तो बोला सर ऐसा नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, नहीं वो नहीं होगा. तो ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश किया. मैं बीच में 2 साल बाहर था, तो सर बोलते थे देवाशीष देखो ऐसे करो. मेरा थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ था, तो सर एज ए मेंटर बहुत गाइड करते थे. सर आप सचमुच हमें प्यार करते थे. ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन आपका दिल में है, हमें आशीर्वाद करें. आपका आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़े.
आप हमें हमारे मेंटर बन के रहे, व्यक्तिगत रूप में भी और कार्यालय के रूप में भी। सर हमें आशीर्वाद प्राप्त करें और बाबूजी आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। धन्यवाद। आपका सेकंड इनिंग्स बहुत बहुत अच्छे हो सर। मैं भटनागर साहब को उस समय से जानता जब आकाशवाणी ज्वाइन किया था मैंने। मैं डायरेक्टरेट में था और भटनागर साहब प्रोड्यूसर से बात करती थी। हम लोग से अच्छे डायरेक्टरेट में मुलाकात होती थी, कभी बातचीत भी होती थी। उसके बाद अलग अलग हो गए। फिर पार्टी पोस्ट हुआ तो मालूम चला कि भटनागर साहब हैं यहाँ पर, तो बड़ी खुशी हुई कि मेरा एक तो ऑफिसर जो है वो मेरे जो उसमें चार्ज में है, तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पर आए तो भटनागर साहब का जो एफर्ट था वो वाकई काबिल तारीफ था। बड़ा अच्छा काम किया आपने और बड़ा प्रोग्रेस किया आकाशवाणी गुवाहाटी सॉरी नॉर्थ ईस्ट जोन में। मैं आशा करता हूँ कि भोज में भी ऐसे प्रोग्रेस होता रहेगा। भटनागर साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। To this auspicious occasion, when we bid farewell to our beloved Bhatnagar sir. Thank you so much. I came specially for this occasion, all the way from West Bengal, Kolkata. And I'm really happy to be here and be a part of this program. Before I speak few lines, just 1 minute speech, I just want to honor our sir with and I want to honor Madam for putting up such support to a workaholic husband. Really, I appreciate you. I want to. Thank you, sir and Madam. My respect to my grandfather and obedient children here. Thank you so much for being a part of this program. I will not speak so much about our sir because everyone has spoken already, and the banner itself says everything. A leader of vision of and values, your contributions shall always be cherished. There's no other words more than that. I cannot sing beyond time and again. I came to this occasion on behalf of CCW and on my own behalf to just say thank you to sir for what he has done for us, for what he has encouraged us, for the motivation that we got throughout our last few 3-4 years when we faced a lot of work pressure with a depleting workforce. It was so difficult to carry on with work without the motivation, without the encouragement of our sir. And it's such a blessing that whenever I feel pressure, whenever I feel tension, I just ran over to his office just to get his smile.
एक हंसता सा सहरा था संसार में, आज से वो जुदा हमसे हो जाएगा। नाम के जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। यूँ तो जाने से रुकता नहीं काम है, पर दिलों में खटकता वही नाम है, जिससे सुख दुख कहे हमने अपने भला, उसे जीवन की जीने की सीखी कला। गजब अंदाज में जो कही शायरी, कोई भी और दूजा ना कह पाएगा। नाम के जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। हर सुबह को जिंदा दिलों से जिया, हंस के पूछा कहो तुम हो कैसे भला। सुख रहे खुद सदा और खुल के जिए, मैले आया ना दिल में किसी के लिए। बोझ हल्का करो अपने दिल का तुम, मन में रखा तो मन मैला हो जाएगा। नाम के जैसा काम किया है आपने, आपको कोई भुला पाएगा। इनकी यादें जहन में रहेगी सदा, इनकी यादें जहन में रहेगी सदा। मुस्कुराती हो सूरत नजर आएगी, सच सुखमय हो जीवन यही कामना। दूर रहने का गम भी सहा जाएगा। नाम के जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा, आपको कोई कैसे भुला पाएगा, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। For the first time, I could see you under the tricolor flag in Didige Garden. I think it was in 26 January 2022. That time, after hoisting the flag, you delivered a lecture which actually have an impact upon me, and you, after giving your speech, you called some MTS staffs and you called some children of our staffs. Some childs came and you called them, you loved them there, you asked some questions, you give chance to tell them there. So this shows actually your concern and attitude towards weaker section, and it is always on your priority, sir, what we have seen. And many of us might be knowing about our activities of recreation club. We do many more activities. So among them, once we did one thing, we identify and we made nomenclature of all the trees in the campus, scientific names, and we identified, we invite, these officers from forest department, they identify these plants and we put nameplates there, which has been done, which are generally done in botanical gardens and zoos and like that. So these activities, when we were carrying out, somehow these activities come to the notice of our ADG sir. He called us, asked us what you are doing, and accordingly he advised us many things to associate with some social activities also. খুব খৰকৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰু বহুত আছে, গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই বাৰে বৰণীয়া নৃত্যটিত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰিমলি দাস, হৰ্ষিতা ৰয়, বিৰুণা ঠাকুৰীয়া, মেঘালী ৰাভা, কস্তুৰী দাস, প্ৰিয়া মণ্ডল আৰু নেহা কলিতাই। मायता महाबाहु महु
दूरस्थलम् रक्तायता कञ्जलोचनयुगम् पीताम्बरं सुन्दरं सुन्दरं मुक्ता हीरका हेमहारा बलयालङ्कार कान्तिदुतिं कृष्ण 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 शारदा चन्द्र चन्द्र सदृशं हृदपङ्कजे अहं भजे अहं भजे अहं भजे
आशीष भटनागर सर जी के साथ हमको इतना टाइम काम करने का मौका नहीं मिला, बट हम आते ही सर ने हमारे लिए मतलब बहुत कुछ करने के लिए कोशिश किए हैं, और हाल ही में हमारे विज़न के ऊपर भी एक किताब मतलब हमारे पब्लिश किए हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। कि कुछ जीवन में ऐसा कुछ दौर आना चाहिए सर, तभी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे लाइफ में भी आया सर, 1.5 साल नहीं 3 साल मेरा लाइफ का सर, लेकिन उस समय आपने जैसे मुझे एनकरेज किया, अभी सर बहुत कुछ सीख गया हूँ सर, नियम भी सीख गया हूँ, कहाँ क्या है सर सब देख लिया, पढ़ लिया सर। और आपने इस समय में मुझे जिस तरह से हेल्प किया उसके लिए सर थैंक यू। और उस दिन भी मैंने बोला था, चिंत्रा बोला सर के सामने बोलो, तो मैं मंच पे आया सर। सर बहुत स्ट्रिक्ट है। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे। Thanks to all of you, we could complete. My last day, my official last day in office has been very satisfying and the credit goes to all of you. मैं क्या हूँ, आप ही का रिफ्लेक्शन तो हूँ मैं। आपको ही जोड़ जोड़ के जो बनता है वो एडीजी बनता है, कोई भी एडीजी हो। और आज हमने वो किया जो वाकई खैर कोई भी अद्भुत तो नहीं होता, लेकिन आमतौर पे बहुत कठिन था। पिछले संडे को हमने एक और सपना देखा, जैसे कहते हैं ना कि कुछ न कुछ खुराफात दिमाग में चलती रहती है। तो लास्ट सैटरडे इवनिंग दिमाग में खुराफात आई कि भाई हमारे टीए जेटीएस का तो इतना बढ़िया विजन डॉक्यूमेंट निकल गया, उसको चेयरमैन प्रसार भारती सीओ प्रसार भारती ने इशू किया। 5 महीने हुए थे इनको, बस इतना सुंदर विजन डॉक्यूमेंट निकला। और कैजुअल असाइनीज अनाउंसर्स भी हमारे डिपार्टमेंट में इतने दिनों से काम करते हैं, जिनका जुड़ाव है अपने श्रोताओं से। दे आर द वॉइस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो पर्टिकुलरली। उनका विजन, जब हम प्रॉफिट सेंटर बनाने की बात करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या ये केवल मेरा विजन हो सकता है? क्या ये केवल सीईओ का विजन हो सकता है? क्या ये केवल किसी एक डीडीजी का विजन हो सकता है? जब तक ये हमारा विजन नहीं हो तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जब तक क्रांति हम सब की क्रांति न हो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो चिंत्रा को मैंने कहा
पिछले शनिवार रात में कि भैया इस बुधवार या गुरुवार तक अपने एक डॉक्यूमेंट, एक किताब बनानी, और उस किताब में हमको सारे स्टेशन से अलग 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 लोगों के विजन बुलाने हैं। मेरे को खुद लग रहा था मैं क्या कह रहा हूँ, बोलते मुझे डर लग रहा था कि कितना गाली बकेगी ये लड़की। अब कितना बका मुझे मालूम नहीं, लेकिन शी कंप्लीटेड इट। आज सुबह हम लोगों ने ये किताब जो है वो यहाँ है क्या, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। ये किताब हम लोगों ने रिलीज की, हाँ, क्रिएटिव वेव्स, द विजन ऑफ कैजुअल असाइनीज ऑफ आकाशवाणी नॉर्थ ईस्ट, वॉइस यूनाइटेड, विजन्स इग्नाइटेड। ऐसे ही विजन्स को इग्नाइट करते रहो तुम लोग। तुम लोगों की मेहनत ही तो है, तुम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। हम तो आते हैं जाते हैं, तुमको हम नीचे आके ये गुलाब का फूल दे देते हैं, है ना, क्योंकि तुम तो इतनी इमोशनल हो रही हो, बोल बाल पाओगे नहीं लो। हाँ, गॉड ब्लेस यू। तुमको भी वैशाली और इसमें दो लोगों ने मिलके 4-5 दिन में इतनी बड़ी किताब निकाल दी। सो दिस वॉज रियली ग्रेट। और एक जो हमारा दूसरा था कि हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, वाकई ये लोग रोज मुझे चैलेंज करते हैं। ये मैंने कई जगह कहा, मैंने सीईओ से भी कहा। मैंने कहा कि रोज मैं अपने जब डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को ऑफिस में देखता हूँ तो मैं हिल जाता हूँ अंदर। मुझे लगता है कि 25,000 रुपये से भी कम इनको मिलता है, और कैसे काम करते हैं बाबा रे बाबा। मैं 2.5 लाख रुपए लेता हूँ, मेरी आउटपुट क्या है? रोज मेरी आत्मा को कुरेदती है ये बात, पर क्या करूँ, अपनी तनख्वाह तो कम कर नहीं सकता। अपनी करूँगा तो बाकी एडीजी डीडीजी की भी हो जाएगी, वो करना संभव भी नहीं है। बट देन दिस वॉज ऑलवेज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी, एंड दैट वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स विच केप्ट मी इग्नाइटेड, जो मुझे लगातार ये कहता रहा कि नहीं, तुमको भी उनसे मैच करना है, नहीं तो तुम उनसे बहुत पिछड़ जाओगे। कितना मैच कर पाया पता नहीं, लेकिन कोशिश ईमानदार की। उस चक्कर में खड़ूस बनना पड़ा कई बार लेकिन दैट वाज अ ग्रेट थिंग एंड वी कुड डू इट। आज हमने एक फाइल भेजी है, जो पहली फाइल है। जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन में पहली बार टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मिले। नॉर्थ ईस्ट जोन में पहली बार आकाशवाणी में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट और जूनियर ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की अप्रूवल हुआ, और उसके बाद में शायद बहुत जल्दी रेडियो में भी हमें कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्रामर्स मिल जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की भी फाइल आज हमने बहुत मेहनत करके, जिसमें देवहरे जी का बहुत काम है, जिसमें दशरथ जी का बहुत काम है, जिसमें स्मिता का बहुत काम है, वो आज हम भेज पाए। स्मिता है यहाँ पे, आओ, एक गुलाब तुम्हारे लिए, तुम्हारे थ्रू सबके लिए, और एक गुलाब देवहरे जी के लिए। तो ये 2 मिशन आज हम लोग कंप्लीट कर पाए, लेकिन एक मिशन अभी भी बाकी है। ये मत कहो यार कि रात में 10 बजे तक रोक के और काम कराऊंगा। हाँ, वो मिशन के लिए सुकाता को इधर बुलाता हूँ। द वंडरफुल मैन, क्या बाप रे, जिसको बोलते हैं द मैन फ्राइडे। अभी तक जो काम कर नहीं पाया, मैंने सोचा था हमारे डीओज और जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं, उन लोगों के पास में कहते हैं ना, रोटी है, बंगला है, कार है, लेकिन आई कार्ड नहीं है। तो आज हम लोगों ने अपने डीओज के लिए एक बढ़िया आई कार्ड बनाया, और अभी शाम को हमारे पास ये आई कार्ड है। पहला आई कार्ड हम प्रिया को भेंट करते हैं इनके हाथ से। प्रिया कहाँ है, भाग गई? हाँ, चलो आओ इधर। और ऐसे ही हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए भी हम लोगों ने एक आई कार्ड डिज़ाइन कर लिया, और एक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हम गगन को ये कार्ड देते हैं, और हमारा एक तीसरा प्रोजेक्ट भी पूरा हुआ। एक दिन में 3 प्रोजेक्ट। हाँ, थैंक यू सुगाता फॉर डूइंग इट। हाँ, आओ गगन इन्हीं के हाथ से लेना चाहिए यार, यही है काम करने वाले। और इसको पकड़ो, मेरे पास अब फूल तो खत्म हो गए हैं, तुमको हक कर लेता हूँ।
मैं इनको हक करता हूँ तो मैं आप सबको हक करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे एक बात बताऊँ, मेरा एक सपना था शुरू से, और मैं बोलता था प्रतिमा जी को, मेरा सपना क्या है। अजीब अजीब से सपने होते लोग। मेरा सपना क्या होता था प्रतिमा, कि एक बहुत बड़ा कंबल हो, उस कंबल में बहुत सारे लोग हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, लड़के हों, लड़कियां हों, मैं भी, और हम सब एक कंबल में बैठे रहें। वी शुड बी अ ग्रेट फैमिली, वी शुड ऑलवेज बी टुगेदर। हम सब जुड़े रहें, हम सब एक दूसरे से प्रेम करते रहें, हम सब एक हों। हम सब के रंग अलग अलग हो सकते हैं, हम सब की जाति अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, महिला पुरुष हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं, लेकिन भीतर से तो हम एक हैं। वो एकता हमको जुड़ी रहे, हमको जोड़ती रहे। दिस इज़ व्हाट वाज माय ड्रीम एंड इट वाज रियली फुलफिल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन नॉर्थ ईस्ट जोन। क्या दे सकता है कोई भी इंसान आपको, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप सब अपने लिए काम करिए। डोंट वर्क फॉर एनी रिवार्ड्स, योर रिवार्ड इज योर सेटिस्फेक्शन। आप अच्छा काम करते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन होता है, और सेटिस्फेक्शन हो के आपके अंदर प्रसन्नता आती है, और ईश्वर आपके अंदर रहता है, ईश्वर प्रसन्न होता है, आपको और ताकत देता है और काम करने के लिए। आप सब आबाद रहें, आप सब लोग और सुंदर काम करते रहें, आप लोग एक सुंदर दुनिया रचते रहें। और मैं, जैसे इंद्रजीत ने कहा कि भाई थोड़ा आराम करो, तो मैं और प्रतिमा भी कहती कर तो बहुत लिया। ये भी अब व्यक्तिगत बातें आपसे शेयर कर लूँ कि काफ़ी दबाव भी थे कभी कि नहीं आपको कंसल्टेंसी करनी चाहिए वो, पर बहुत सोच समझ के हमने पाया है, तय किया है कि नहीं, एक फेज खत्म हुआ, अब धीरे धीरे अंदर की यात्रा शुरू करनी है। आप लोगों के प्रार्थनाओं से मैं कुछ शांत हो सकूं, कुछ बोलना कम कर सकूं, कुछ महीन महीन आवाज़ों को जो आसमान से आती हैं, सितारों से आती हैं, आपके दिलों से आती हैं, उनको सुन सकूं, आपके सुंदर कामों को देख सकूं, और देख देख के खुश रहता हो सकूं। मैं उस फेस में जा पाऊं, इसके लिए प्रार्थना करिए। यह मैं आपसे मांगता हूं, आपसे मांगता हूं कि आप अपनी प्रतिभा को पूरी तरीके से बाहर आने दीजिए, और आपसे मांगता हूं कि अपनी बात ख़त्म करते करते मेरे साथ एक गाना गाइए। कुछ लोग सामने आइए और हम लोग मिलकर गाना गाएं और आज की बात ख़त्म करें। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।